बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum. I begin with the name of Allah, who is the most beneficent and the merciful. I wish you to all a happy new year 2021. May this year bring lots of happiness and prosperity, inshallah. Now we will continue the chapter 11 and trigonometric ratio. As I have told in the previous class, the trigonometric ratio is the branch of the mathematics in which we do the study of the triangles and measurement of the right angle, measurement of the angles and the sides of the right angle triangle. So if I don't have a right angle triangle, suppose we have a quadrilateral shape, isosceles triangle, scalene triangle, quadrilateral, hexagon, pentagon. So how can we apply the trigonometric ratio? So first you break all these shapes in the right angle triangle, then you can apply the trigonometric ratio. And I have discussed the three main functions. Number one is the sine theta equal to opposite upon hypotenuse. Every sine of theta is equal to the opposite upon hypotenuse, but the side opposite depend on the position of the right angle triangle. Suppose a triangle, this is the right angle triangle A, B and C. This is the 90 angle. As you know, the opposite sides of the 90 is called the hypotenuse. And let's suppose if the measure the side opposite with respect to theta angle A. So this is the opposite side. Opposite side means जो आमने सामने हो, आपके सामने कोई साइड हो, तो ये थीटा के सामने. So this is the opposite side with respect to angle A. If we measure, let's suppose if we measure the opposite side with respect to theta B. So this is the opposite side. So it means the opposite side depend on the position of the theta. आप किस एंगल के रेफरेंस से मेजरमेंट कर रहे हो अपनी साइड्स को, तो ये डिपेंड करेगा थीटा पर. क्लियर. नाउ मूव द सेकंड फंक्शन इज द कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो एडजेसेंट इज द नेक्स्ट साइड टू द थीटा, यानी आपके जो थीटा के बिल्कुल साथ वाली साइड बराबर में जो होगी, दिस इज द एडजेसेंट. Let's suppose if the measure the adjacent side with respect to theta A, so this side is the adjacent side because it is next to theta. And if we measure the adjacent side with respect to angle B, so this is the adjacent side. So adjacent side depend on the position of the theta. Clear? The cos of every theta is equal to every angle is equal to the adjacent upon hypotenuse. Hypotenuse would be the same. ये सेम रहेगा क्योंकि ये 90 के सामने. दोनों फंक्शन में हाइपोटेन्यूज साइड सेम रहेगी, बट एडजेसेंट साइड और अपोजिट साइड वो साइन के साथ होगा अपोजिट, कॉस के साथ होगी एडजेसेंट साइड, और ये दोनों साइड डिपेंड करेगी पोजीशन ऑफ द थीटा पे. नाउ द थर्ड फंक्शन इज tan theta equal to opposite upon adjacent. Same here. Adjacent, opposite side and adjacent side depend on the position of that. दोनों साइड डिपेंड करेगी आपकी थीटा पे. अगर आप इस रेफरेंस से मेजर कर रहे हो, अपने tan की वैल्यू को आप इस एंगल के रेफरेंस से मेजर करेंगे, तो दिस इज द अपोजिट साइड एंड दिस साइड इज द एडजेसेंट साइड. If we measure the sides opposite and adjacent with respect to angle B, so this side is the adjacent and this side is the opposite.
क्लियर? तो ये दोनों साइड डिपेंड करेगी किस पे, पोजीशन क्या है आपकी थीटा की, कौन से एंगल से आप अपनी साइड्स को मेजर करो. सो नाउ मूव द एक्सरसाइज 7C फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1. यूज अ कैलकुलेटर. सो रिमेंबर साइड योर कैलकुलेटर मोड इन डिग्री and we are computing the value of angle in degree. Clear? So use a calculator to find each of the following angles. In first part, sine angle A equal to 0.527. Find the angles and given it's the trigonometric ratio. Here we given the ratios, value ratio की given है यहाँ पे. So remember in exercise 11A question number 4 वहाँ मेरे पास sin 75.3 given था, वहाँ एंगल्स गिवन था, फंक्शन से आप एंगल निकाल के आप वहाँ पे रेशियो फाइंड कर रहे थे. बट यहाँ पे क्या है, रेशियो गिवन है, यू विल हैव टू फाइंड द एंगल्स. एंगल्स आपने इस सवाल में फाइंड करना है. सो हाउ टू फाइंड द एंगल, इट विल हैव टू टेक द इनवर्स. कैसे इनवर्स लेंगे? फर्स्ट यू विल राइट द क्वेश्चन एंड एंगल ए, लीव एंगल ए अलोन एंड टेक द साइन इनवर्स. साइन क्या होगा, ये जो साइन फंक्शन है ये आपके पास लेफ्ट साइड पे मूव करेगा क्योंकि एंगल फाइंड करना है. एंगल ए है जो कि आपने यहाँ पे एंगल फाइंड करना है, यहाँ एंगल ए फाइंड करना है और आपको वैल्यू 0.57 गिवन है. ठीक है, सो यहाँ आपने ये एंगल फाइंड करना है. क्लियर? सो ये इनवर्स हो जाएगा, इधर आके ये इनवर्स लेंगे 0.527. क्लियर? सो क्या करोगे आप, so here should be D, it means the unit is in degree. so आपका सबसे पहले चेक करोगे यहाँ D लिखा होना चाहिए. so first you will press the shift button, then press the sine function, you will get the sine inverse. आपने कैलकुलेटर में सबसे पहले इनवर्स के लिए शिफ्ट बटन आप प्रेस करोगे. अगर आपने डायरेक्ट साइन का फंक्शन प्रेस किया तो वो एंगल, साइन ऑफ एंगल कंसीडर होगा. शिफ्ट दबाकर अगर आप साइन फंक्शन को प्रेस करते हो तो वो साइन इनवर्स कंसीडर होगा. तो इनवर्स के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, शिफ्ट बटन दबाओगे, देन आप प्रेस करोगे साइन के फंक्शन को एंड पुट द वैल्यू. पहले मैंने शिफ्ट बटन दबाया, साइन का बटन, अब मैं अपनी वैल्यू पुट कर रही हूँ 0.527 इक्वल टू, सो द एंगल यू विल गेट द 31.80 डिग्री. क्लियर? एंड द पार्ट बी यू विल टेक द कॉस इनवर्स 0.725 and the part C tan inverse 2.25. the other parts also to be done like that. ठीक है, आपने ऐसे ही करना है इसको. इसका cos इनवर्स लोगे, फर्स्ट यू विल प्रेस द शिफ्ट बटन देन यू विल प्रेस द cos फंक्शन, तो वो cos इनवर्स हो जाएगा. इसी तरीके से tan के लिए भी शिफ्ट का बटन दबाओगे, फिर आप tan का फंक्शन यहाँ पे प्रेस करोगे और अपनी वैल्यू पुट करके इक्वल टू का बटन दबा के आंसर आ जाएगा. यानी एंगल बी यहाँ पे फाइंड हो जाएगा एंड एंगल सी यहाँ पे आंसर आ जाएगा. क्लियर? सो नाउ मूव द क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. Find the value of the unknown in each of the following right angle triangles. So here we given the right angle triangle. This is the right angle triangle and given the two sides the 26 centimeter. This is a 90 and the 12 centimeter angle theta A given है. Find the value of the unknown. So here the unknown is angle A. You will have to find theta. आपने find करना है. And the 12 is the opposite side of the theta A. So this is the opposite 12 centimeter. And 26 is the opposite sides of 90. So it means it's the hypotenuse. So here we given the two side opposite and hypotenuse. The ratio of opposite upon hypotenuse, as you know, is equal to the sine of theta. Clear? Sine एंगल A, थीटा एंगल A के बराबर है. अपोजिट इक्वल टू 12
upon hypotenuse equal to 26. Sine angle A degree equal to 12 divided by 26 would be equal to 0.461. Clear? So after this calculation you will have to find the angle A. So you will take the sine inverse and leave angle A alone. Take the sine inverse. First you will press the shift button, then you will press the sine function. So आपको sine inverse मिलेगा. Put the value 0.461 equal to थीटा आपके आ गया, एंगल ए आपके पास आया 27.45. Clear? Now move the question number 3. The figure shows a quadrilateral ABCD shape point A, quadrilateral जिसके 4 points होते हैं. This is a point B, C, point A, B, C and D. Here we given the quadrilateral shape. Clear? So angle ABC, where the angle ABC? Angle ABC. It's talking about the angle ABC. It means it's talk about angle B. जो सेंटर में होता है उसकी बात करते हैं, ठीक है? यानी एंगल B की बात कर रहे हैं यहाँ पर. इक्वल टू, आगे इन्होंने क्या कहा है कि ये इक्वल है, बराबर है, इक्वल टू एंगल BCD. बराबर है ये किसके? एंगल BC एंड D के. एंगल BCD. इट्स मीन टॉकिंग अबाउट द एंगल C. इक्वल टू 90. यानी एंगल B और एंगल C की बात करें, दोनों किसके बराबर है? 90 के. तो यहाँ 90 के मार्क बना देंगे, दोनों पे 90 के मार्क आ गए. गिवन दैट द AB इज 4 मीटर, द लेंथ AB is the 4 meter. Clear? And the DA, the length of DA equal to the length DC. कह रहे हैं जो लेंथ AD है वो बराबर है, दोनों साइड बराबर है, इक्वल टू 7 मीटर. यानी दोनों साइड 7 मीटर के बराबर है, एंगल साइड AD एंड DC. क्लियर? Find the in first part angle ADC. In first part we'll have to find the angle AD and C. Angle AD and C. यानी D आपने क्या करना है? Find करना है. In the second part you will have to find the length of BC. So for finding the angle D, here we need to separate this figure and we need to make the right angle triangle. So we separate this figure into two parts by this line named AE. So you can see here we have the right angle triangle. This is the right angle triangle. ये 90 यहाँ पे perpendicular ये line draw कर रही है. This is the right angle triangle. So find the angle D. We will consider the triangle ADE. Solve part 1. Consider triangle ADE. Clear? So find the theta angle. You will have to find, this is a theta, angle D find करना है, and the opposite sides of the theta DAE is equal to, is parallel to BC. It means the length AE equal to BC. It's not given, so it means here we will take the length DE. This is the adjacent because it is the next to the theta. So you will have to take the adjacent side. But here is problem, the complete, and here we given the DC. Total length given is 7 meter. So if we remove the length EC, अगर मैं length EC remove करती हूँ, so you will get the length DE. अब ये कैसे remove करें? क्योंकि total length given है. We have been given the total length DC 7 meter. 7 meter में से मुझे इतनी length चाहिए. Just so you remove the length EC. So you can see the length EC is parallel to AB. So it means the length AB equal to EC.
So which is given the 4 meter, it means 4 is subtracted from 7, you will get answer 3. So 7 यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे 4 से. So 3 मीटर आपके पास ये आ गई आपकी एडजेसेंट साइड. यानी मैंने क्या किया, टोटल लेंथ में से इतनी रिमूव की जो कि बराबर है 4 के. जब मैंने इतनी रिमूव की तो मेरे पास इतनी वैल्यू आ गई. क्लियर, दिस इज द एडजेसेंट साइड. एंड हियर गिवन द 7 मीटर एंड 7 मीटर इज द अपोजिट टू 90. इट मींस इट इज द हाइपोटेन्यूज. So the adjacent side and hypotenuse, the ratio of adjacent and hypotenuse is equal to the cos of theta. Clear? So cos theta equal to d equal to adjacent 3 and hypotenuse is 7. So 3 divided by 7 would be equal to 0.428. Clear? So and leave the angle D alone and take the cos inverse. क्योंकि आपने एंगल डी फाइंड करना है तो cos क्या होगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये इनवर्स हो जाएगा. सो फर्स्ट यू विल प्रेस द शिफ्ट बटन, देन यू विल प्रेस द cos function, you will get and put the value 0.428, you will get the angle D 64.65 degree. Clear? Now move the second part. You will have to find the length BC. So you can see the length BC is parallel to the length AE. It means BC equal to the length AE. So you can, for finding the length BC, you can consider this triangle. Clear? So consider the triangle ADE. यानी मैं इसको भी फाइंड कर सकती हूँ. लेंथ BC इसके बराबर है. अगर मैं AE की लेंथ फाइंड कर लूँ तो मेरे पास वो BC के ही बराबर होगा. सो आप ABC की लेंथ फाइंड करने के लिए इसी ट्राइंगल को कंसीडर कर सकते हो. सो theta D you will have to find in first part 64.65 and the length AE is the opposite angle D. यही आपने फाइंड करनी है AE. So this is the opposite side which is equal to BC, जो कि BC ही आपने फाइंड करनी है. ये BC के ही इक्वल है क्योंकि ये पैरेलल है. And the 7 is the opposite sides of 90. It means the hypotenuse. So here given the side opposite and hypotenuse, so you will have to take the ratio opposite upon hypotenuse would be equal to sine of theta. Sine theta is 64.65 equal to side opposite equal to AE डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज इक्वल टू 7. यहाँ आप आपने एक साइन एंगल गिवन है 64. सो अब आपने यहाँ पे शिफ्ट का बटन नहीं दबाओगे, सिर्फ साइन लिखोगे. और क्योंकि ये एंगल गिवन है, ये रेशो नहीं है, साइन एंगल निकाला है इस फंक्शन से आपने. तो 64 साइन 64.65 इक्वल टू, यहाँ एंगल मेरे पास क्या आ गया है 0.903 equal to AE divided by 7. 0.903 multiply 7, ये इधर आ जाएगा, इसका ऑपरेटर चेंज हो जाएगा, इस तरफ ये डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया. 0.903 multiply 7, you will get the length AE 6.321. So you can see the length AE is parallel to BC, so it means the length AE is equal to BC, which is meter. यानी BC की लेंथ मेरे पास क्या आ गई 6.321 मीटर. Okay, now move the exercise the 11D. Start from the question number 1. अब point A, आपके पास एक पॉइंट है, पॉइंट A,
on the level ground is 34 meter away from the foot B. ये पॉइंट A जो है पॉइंट B से 34 मीटर के डिस्टेंस पे, क्लियर, 34 मीटर अवे फ्रॉम फॉर B ऑफ अ क्रिसमस ट्री TB. इस पॉइंट B पर एक ट्री है जिसकी जो लेंथ गिवन है वो T से B गिवन है. एक क्रिसमस ट्री यहाँ पे है, ये आपके पास एक ट्री है पॉइंट B पर, क्लियर. ओके, विद हॉरिजॉन्टल, ठीक है, सॉरी, गिवन दैट द AT, गिवन दैट द पॉइंट A and T and AT makes an angle of 32 with the horizontal. यानी ये एक एंगल ड्रॉ कर रहे हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक एंगल ड्रॉ हो रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन से, जो कि वो कितना गिवन है आपके पास 32 डिग्री. फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, आपने हाइट बतानी है ट्री की. सो यू कैन सी हियर वी हैव द राइट एंगल ट्राइंगल. दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल. दिस इज पॉइंट T, B and A. This is a 90. ये 90 है. Clear? Now solve. So given the theta angle A 32 and the opposite side of the 32 is the length TB. The height of the tree you will have to find. And here given the 34 is, it's the next to the theta, it means it's the adjacent side. 34 meter. So here given the side opposite and adjacent, so the ratio of opposite upon adjacent would be equal to tan theta. Clear? So tan theta is 32 equal to opposite TB, the height of the tree you will have to find, and the adjacent is the 34. So angle tan 32, शिफ्ट बटन नहीं प्रेस होगा क्योंकि एंगल निकाल रहे हैं, इन्वर्स नहीं लेना. tan 32 इक्वल टू 0.624 इक्वल टू TB and divided by 34. So 0.624, 34 it will move the other side with algebraic, change the algebraic operators into multiplication. 6.24 into 34, 21.21 मीटर. जो आपके पास हाइट आ गई, यानी यहाँ पे ये डिवाइड होता है, इससे आके मल्टीप्लाई किया. द लेंथ ऑफ TB मीन्स हाइट ऑफ द ट्री आपके पास कितनी आ गई 21.21 मीटर. Okay, now move the next part, next question, question number 7. Lexin is a standing, Lexin is a cute little girl. Question number 7. Is standing 7.05 मीटर अवे फ्रॉम द स्टैचू. एक स्टैचू के से ये कितने डिस्टेंस के फासले पे खड़ी हुई है 7.05 मीटर. फ्रॉम द स्टैचू ऑफ द मेरिडियन MP. एक मेरिडियन के स्टैचू है यहाँ पे जिसकी लेंथ M से P तक गिवन है. At the Meridian Park, Singapore. The height of her eyes from her feet is 1.55 meter. इसकी eyes से इसकी जो height है feet तक जो height given है वो 1.55 meter. Clear? So given that the angle of elevation of the top of the statue from her eyes is 42 degree, find the height of the statue. आपने ये height बतानी है. So what is the angle of the elevation? So this is the point. In this case, the lesson height is the point of observation. Point of observation. And the top of the object, a statue. This is the point of object.
object, draw these point of observation and point of object, join these point and draw the line. This is the line of sight, clear? And draw the horizontal line from the point of observation. This is the point of observation, here is the point of observation. Draw the horizontal line from the point of observation to the object. ठीक, the angle between the horizontal line and the line of the sight is called the angle of elevation. This which have been given the 42 degree. Clear? एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है आपके पास, यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, यहाँ से ये इसकी तरफ देख रही है, तो यहाँ से जो इसका एक एंगल बन रहा है, इसकी उसी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से यहाँ से अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँ तो यहाँ से इसका एक एंगल ड्रॉ हो रहा है जो कि गिवन है 42. इसे आप क्या बोलते हो, एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल से आपका एक एंगल, उसके बीच में जो एंगल बने. और लाइन ऑफ साइट क्या होती है, वो पॉइंट यानी जहाँ से ऑब्जर्वेशन हो रही है और जो ऑब्जेक्ट है उस पॉइंट को ज्वाइन कर दो, वो एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी जिसे लाइन ऑफ साइट कहते हैं. सो यू कैन सी हियर वी हैव, एंड द नेम ऑफ दिस लाइन, draw the horizontal line and the name of this line AE. Clear? So you can see the here we have the triangle angle AME. Angle AME. This is the right angle triangle. यहाँ ये 90 perpendicular draw हो रहा है. This is the 90 angle. Now solve this question. So theta is 42. And the opposite sides of 42 is the length of height of the statues MP. This is the opposite. You will have to find, sorry, ME. MP नहीं ME. ये triangle यहाँ से यहाँ तक draw हुआ है. ME. This is the height of the statue. And here we given the length, the AE. यहाँ से यहाँ तक ये जो मुझे गिवन है, ये जो लेसन कहाँ खड़ी हुई थी स्टैचू से, कितने डिस्टेंस से, 7.05, यानी ये लेंथ बराबर है एक दूसरे के. दिस इज द एडजेसेंट साइड. सो हियर वी गिवन द एडजेसेंट साइड इज द 7.05 मीटर. सो द अपोजिट एंड द एडजेसेंट, रेशियो ऑफ अपोजिट एंड एडजेसेंट साइड इक्वल टू tan theta. So tan theta is 42 and the opposite side is ME. Adjacent is the 7.05. So tan 42 is 0.900 ME divided by 7.5. 0.900 multiply 7.05 equal to ME. 0.900 multiply 7.05. The answer is 6.34 meter equal to ME. So the height of statue is 6.34 meter. But here we need to find the length EP because this is the part, this is the height of the statue. ये भी एक, क्योंकि आपने हाइट बतानी है, टोटल हाइट M से P है, तो ये भी है आपके पास स्टैचू का उसकी हाइट का एक हिस्सा है ये भी. सो यहाँ आपने क्या, आप कैसे फाइंड करेंगे? सो यू कैन सी द लेंथ EP इक्वल टू द हाइट ऑफ द लेसन. आप देख सकते हो ये इसके बिल्कुल बराबर है. सो द हाइट ऑफ द लेसन इज द 1.55. सो इट मीन्स द टोटल हाइट ऑफ स्टैचू इज, सम करेंगे आप किसको, ये जो आपके पास गिवन आई है M से E, ये हाइट है 6.3 प्लस द हाइट ऑफ लेसन इज द 1.55. ये बराबर है इसके, ठीक है, प्लस 1.55 इक्वल टू द 7.89. टोटल हाइट ऑफ स्टैचू 7.89 मीटर. नाउ मूव द लास्ट पार्ट. Question number 13 is the 2 point P and Q. Point P and Q
P and Q 10 मीटर अपार्ट, यानी एक 10 मीटर है इनके दोनों के बीच का इस पॉइंट का डिस्टेंस जो है, ऑन अ लेवल ग्राउंड आर ड्यू वेस्ट ऑफ द फुट B ऑफ अ ट्री TB। यानी यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि एक पॉइंट P और Q है, इसके आगे वेस्ट की तरफ एक पॉइंट B है जहाँ पर एक ट्री है, ठीक है। इस पॉइंट B पर एक ट्री मौजूद है और जिसकी हाइट गिवन है T से B तक। इस ट्री की हाइट है T से B तक। Given that the angle TPB, given that the angle TP and B, point T, point P and point B, यहाँ एक एंगल ड्रॉ हो रहा है, ठीक है, एक एंगल बन रहा है, यानी T से P तक एक एंगल गिवन दिया हुआ है। कितना गिवन है आपको? 23। एंड द एंगल TQB, एंगल TQB, यानी एंगल इस पॉइंट T से Q और B, यानी सेंटर वाले एंगल की बात कर रहे हैं। कहाँ पे? यहाँ T से Q पर हॉरिजॉन्टल लाइन B तक जा रही है, जो कि कितनी गिवन है आपको? 32 डिग्री। एंड फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। आपने क्या मालूम करना है? हाइट मालूम करनी है ट्री की। सो हियर वी गिवन द ट्राइंगल T P and B, this is the whole triangle, and triangle TQB, this is the second triangle. So यहाँ आपने हाइट मालूम करनी है। अगर आप इस ट्राइंगल को देखो, ये वाली जो ट्राइंगल है, सो ये यहाँ से भी हाइट इस ट्राइंगल के थ्रू भी फाइंड कर सकते हैं, बट यहाँ जस्ट आपको एक ही एंगल गिवन है। अगर गिवन ये साइड होती तो आप इसको आसानी से फाइंड कर सकते थे, एक साइड और एंगल के थ्रू आप यहाँ पे हाइट फाइंड कर सकते थे, बट यहाँ गिवन नहीं है। सो कंसीडर द लेंथ QB इज द D मीटर। आपने इसको D मीटर कंसीडर कर लिया क्योंकि ये गिवन नहीं है। सो नाउ कंसीडर द ट्राइंगल TQB। This is the theta 32, and the opposite sides of the 32 is the height of the tree TB. This is the opposite, and consider the height of the tree is H. ये मैंने H consider कर लिया। The length TB is H. You will have to find. And here the D meter is the next to the theta. It means this is the adjacent side. D मीटर। सो फर्स्ट यहाँ पे हम हाइट्स मालूम करने से पहले हम यहाँ पहले इसकी लेंथ फाइंड करेंगे। D फाइंड होगा तो हम ये हाइट फाइंड कर सकते हैं। सो द अपोजिट साइड, द रेशियो ऑफ अपोजिट टू एडजेसेंट इक्वल टू tan थीटा। सो tan इज 32 इक्वल टू अपोजिट इज H, ठीक है, एंड एडजेसेंट इज D। सो tan 32 equal to 0.624 equal to H divided by D। तो यहाँ आपने क्या करना है? H की वैल्यू फाइंड करनी है। सो चेंज द प्लेस ऑफ दिस वैल्यू। D आप यहाँ ले आओ और ये इधर आके इससे डिवाइड हो जाएगी। H डिवाइडेड बाय 0.624। क्लियर? So you can see here we have the two unknown variable D and H. Whenever we have the two unknown variables, we cannot find them together. So it means it's consider, you will have to consider this is the equation 1 कि दोनों एक साथ सॉल्व नहीं हो सकते, या तो एक की वैल्यू पता हो तो मैं H की वैल्यू पता होगी तो इससे डिवाइड होगा। सो इसलिए मैंने कंसिडर किया दिस इज द इक्वेशन 1। नाउ मूव अहेड, दैट यू विल कंसीडर द होल ट्राइंगल TPB। Now consider the whole triangle TP and B. This is the whole triangle. So here given the theta 23 and the opposite sides of the theta 23 is the height of the tree TB. This is the H, and here given the this side, this is the adjacent of
क्योंकि इसकी क्या है, नेक्स्ट है इसके बराबर, दिस इज द एडजेसेंट साइड, P और B एडजेसेंट साइड है, जो कि कितनी गिवन है, हाफ गिवन है 10, और D मैंने कंसीडर की है, सो इट मीन्स द एडजेसेंट वुड बी इक्वल टू 10 प्लस D. So the opposite and adjacent ratio of the opposite to adjacent equal to tan theta. So tan is theta is 23 and the opposite is h, and the adjacent is equal to 10 plus D. Tan 23 is 0.424 h अपॉन 10 प्लस डी. मुझे यहाँ d फाइंड करना है, सो क्या करेंगे, इनकी प्लेसेस को आप चेंज कर दो, यहाँ से ये इधर आ जाएगा, h अपॉन, इसको मैंने यहाँ पे लाके डिवाइड कर दिया, ठीक है. 10 d फाइंड करना है, 10 यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, इसको इधर मूव कर देते हैं. जब ये इधर मूव होगा तो इसका साइन ये तो ऐसे ही आ जाएगा, 10 यहाँ से उठ के इधर आएगा, ये इसमें ऐड हो रहा है, इधर आके माइनस. सो यू कैन सी हियर वी हैव आल्सो द टू अननोन वेरिएबल d एंड h. तो यहाँ पे ये भी फाइंड नहीं कर सकते. सो नाउ कंसीडर दिस इज द इक्वेशन 2. दिस इज इक्वेशन 2. You will have to consider the equation 2 because here we have the two unknown variables. We cannot find them together. Clear? So you can see the equation 1 and equation 2. D use as a variable, use as a subject of the formula. यानी यहाँ पे D और ये भी D के बराबर है and ये भी D के बराबर है. So you can compare the equation 1 and 2. So compare equation 1 and equation 2. कंपेयर कर लेंगे क्योंकि दोनों मेरे पास किसके इक्वल है, D के इक्वल है, दोनों मैंने कंपेयर किया. यहाँ D की वैल्यू है h अपॉन 0.624 and in equation 2 D equal to h upon 0.424 minus 10. This term will be as it is. So you can see that D is the eliminate. जब आपने कंपेयर किया तो D यहाँ से खत्म हो गया. So here we given the like variable. This is the h, the height of the tree you will have to find. This term will be as it is equal to, यहाँ आपने क्या करना है, लाइक फ्रैक्शन यानी इनका एलसीएम लेना है ताकि ये सिर्फ इस पे फ्रैक्शन हुआ है ताकि ये एक लाइक फ्रैक्शन हो जाए, उसे हम आसानी से सॉल्व कर सकें. तो यहाँ हम लेंगे एलसीएम. 10 से ये वैल्यू मल्टीप्लाई जब होगी, ये टर्म इधर जाके इसके पास जाएगी मल्टीप्लाई. 10 से जब ये मल्टीप्लाई होगी 0.424 को जब आप 10 से इधर जाके मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर होगा 4.24 डिवाइडेड बाय 0.424. सही. अब क्या होगा, बीच में इक्वल टू है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये वैल्यू इधर आ जाएगी, ये वैल्यू इधर चली जाएगी. सो h के पास ये जब मल्टीप्लाई होगा इक्वल टू, ये वैल्यू उठ के इसके पास आ गई और ये वैल्यू उधर चली जाएगी. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, h ये वैल्यू इसके पास h से मल्टीप्लाई होगी 0.424 इक्वल टू h माइनस 4.24 से ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी. h माइनस 424 इंटू 0.624, 0.424 इंटू h, ये ऐसे ही आ गया. अब क्या होगा, जो ये वैल्यू है ये इन दोनों से 1 by 1 मल्टीप्लाई होगी. ठीक है. सो h से जब ये मल्टीप्लाई होगी 0.624, ये वैल्यू h से मल्टीप्लाई हुई, देन जब ये इससे मल्टीप्लाई होगी सो क्या होगा, 4.24 मल्टीप्लाई 0.624 इक्वल टू 2.645. ये इससे मल्टीप्लाई हो गया. ठीक है. सो यहाँ आप देख सकते हो h और h लाइक वेरिएबल, तो लाइक वेरिएबल सॉल्व होंगे. तो इसका मतलब है, और यहाँ इसके साथ कोई वेरिएबल यूज नहीं, यानी ये कांस्टेंट नंबर है यहाँ पे, जिसे आपने क्या करना है, लाइक वेरिएबल से सॉल्व होगा तो इनकी प्लेसेस चेंज करेंगे, इसको इधर मूव करेंगे और इसको इससे, ताकि h वेरिएबल लाइक वेरिएबल है ताकि ये सॉल्व हो सके. तो यहाँ ये नेगेटिव है, इधर आके पॉजिटिव,
इक्वल टू 0.624H। यहाँ ये पॉजिटिव था, इधर आके ये नेगेटिव हो जाएगा। इन दोनों को आप क्या करोगे, माइनस, ये वैल्यू ऐसे ही रहेगी, इन दोनों को आप माइनस करोगे, यू विल गेट द 0.2H। सब्ट्रैक्ट हो रही है ये वैल्यू इस वैल्यू से, सो आंसर आएगा 0.2। अब क्या होगा, यहाँ पे h फाइंड करने के मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट विल गो टू द अदर साइड, द ऑपरेटर इज डिवाइड हो जाएगा इसके यहाँ पे, यहाँ आके ये वैल्यू से डिवाइड हो गई। 2.645 डिवाइडेड बाय 0.2, द वैल्यू ऑफ h इज द 13.22 मीटर। यहाँ मेरे पास हाइट आ गई, जो ट्री की हाइट मालूम करनी थी वो मैंने फाइंड कर ली। ठीक है, नाउ मूव द होमवर्क पार्ट। Chapter 11 complete, and your content have also completed over here. Practice exercise 11C and 11D. And write down the functions of given triangle. Triangle A, B and C. This is the 90 and this is the theta. इसके रेफरेंस से आप क्या करोगे, अपने सारे फंक्शंस को यहाँ पे ड्रॉ करोगे। ठीक है, थीटा ये रहा, इसके रेफरेंस है, ये है आपके पास थीटा, और सारे फंक्शंस जो मैंने बताए हैं साइन, कॉस एंड टैन, वो आप यहाँ पे राइट करोगे। तो यहाँ आपका कंटेंट और चैप्टर 11 कंप्लीट हो गया। सो अब हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में अपने रिवीजन करेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।